কাইলৈ দেখে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এআইএমআইএমৰ নেতা আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই সংবাদ মেলত ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে মুছলমান সকলেও দেশৰ বাবে বলিদান দিছিলে, কিন্তু স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে দেশত আজি মুছলমানৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলিছে। কেৱল সিমানেই নহয়, ওৱেইছিৰ ঘৰত যি কালি নিশা আক্ৰমণ হৈছিলে তাক লৈ তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত কিয় মুছলমানক একাংশই টাৰ্গেট কৰিছে। আমি জনাইছো টাইমে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা ডাঙৰ খবৰ। নুহত থকা মুছলমানৰ ঘৰসমূহত বুলডোজাৰ চলাই ভাঙি দিয়া হ'ল। হাৰিয়ানাৰ নুহত যি বুলডোজাৰ চলিছিলে তাক লৈ ওৱেইছিৰ প্ৰশ্ন, মোৰ ঘৰতো শিলাবৰ্ষণ কৰা হৈছে। কালি নিশাৰ ভাগত আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ ঘৰত শিলাবৰ্ষণ কৰা হৈছিলে, ইয়াক লৈ ওৱেইছিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে। তেওঁ কৈছে আমাৰ ঘৰতো হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চৰকাৰে বুলডোজাৰ চলাব। মুছলমানৰ পক্ষে মই মাত মাতি আহিছো, তাৰ বাবেই মোৰ ঘৰত শিলাবৰ্ষণ কৰা হৈছে বুলি ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে। এফালে মুছলমানৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলিছে, আনফালে সাংসদৰ ঘৰত শিলাবৰ্ষণ কৰা হৈছে। দেশত এক ঘৃণাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত এই কথাবিলাকক আমি গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। ওৱেইছিয়ে কৈছে 4 বাৰকৈ মই সাংসদ হিচাপে জয়লাভ কৰিছো, 4 বাৰকৈ মই এমপি হিচাপে জয়লাভ কৰিছো। ইয়াৰ পাছতো মোৰ ঘৰত দিল্লীতে আক্ৰমণ চলিছে, ইয়াতকৈ আৰু পৰিতাপৰ কথা কি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। আৰক্ষীৰ পোছাকত থাকি ৰেলত একাংশই নিৰীহ মানুহক বিশেষকৈ মুছলমানক হত্যা কৰিছে, এয়া ওৱেইছিয়ে কৈছে। মুছলমানক গণপ্ৰহাৰ কৰা হৈছে, গণহত্যাৰ বলি হোৱা হৈছে আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত এই কথাবিলাকত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। এই লোকসকলে এনেকুৱা কামৰ লগত জড়িত যিসকলে দেশত ঘৃণা বিয়পাইছে। এই ঘটনাবিলাকৰ ফলত দেশত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব। ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এই কথাবিলাকৰ ওপৰত আমি সকলোৱে গুৰুত্ব দিব লাগে। কাইলৈ আমি 15 আগষ্ট অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিম, স্বাধীনতা দিৱস আমি উদযাপন কৰিম, কিন্তু স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে নুহত মুছলমানৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱা হৈছিলে, যিসকল মুছলমানে পাকিস্তানলৈ নগৈ ভাৰতেই থাকি গ'ল। এই বুলডোজাৰ জাষ্টিছক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশ্ন কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে, এই বুলডোজাৰ জাষ্টিছৰ বিৰুদ্ধে মাত কিয় নামাতে? সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক ভংগ কৰি কিয় বুলডোজাৰ চলোৱা হৈছে? দেশত এতিয়া আইন ব্যৱস্থা নাই নেকি? দেশত এতিয়া শাসন নাই নেকি? যাৰ বাবে এইদৰে হাতত আইন তুলি বুলডোজাৰ চলাই মুছলমান লোকৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছে। ওৱেইছিয়ে এই প্ৰশ্ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতত পোৱা মুছলমানৰ ওপৰত পোৱা নিৰ্যাতনক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গৰিহণা দিব লাগে বুলি ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। আৰু ওৱেইছিয়ে কৈছে কাইলৈ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ ৰাখিব, দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব, দেশত থকা মুছলমানৰ ওপৰত চলা যে ঘৃণা বা নিৰ্যাতন, ইয়াক লৈও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাত মতাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ওৱেইছিৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কালি আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ বাসগৃহত নিশাৰ ভাগত দিল্লীস্থিত বাসগৃহত শিলাবৰ্ষণ কৰা হৈছিলে। সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ লগত আছে, সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এই যিটো বাসগৃহ আছিলে তেখেতৰ দিল্লীৰ চৰকাৰী বাসগৃহ, তাত শিলেৰে আক্ৰমণ কৰা হয়। নিশাৰ ভাগত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এইদৰে বাসগৃহটোত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত ওৱেইছিয়ে মন্তব্য কৰিছে। আমি মন্তব্য এফালে দেখুৱাম, এফালে দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। 15 अगस्त आज़ादी यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं और आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को और वो नूह के मुसलमानों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी वहां पर जाकर नूह के मुसलमानों से कहा था कि तुम मत जाओ पाकिस्तान को। आप ये महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं आप। ठीक है, हिंसा हुई, हम उसका कंडेम करते हैं, मगर आप एक पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। कहां गया प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? और कहां गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आरएसएस से बात करना चाहिए? कहां गए वो लोग? किधर कौन सी बिल में छुप गए वो लोग? कहां गए वो लोग जो बोलते थे कि डायलॉग होना चाहिए? बोलो, डायलॉग करो। अभी जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको नूह को जाकर बर्बादी देखने की जरूरत है। उनको प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए, नूह के डेमोलिशन को। प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है। कैसे आप इस देश में कोर्ट नहीं है क्या? कानून नहीं है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का वायलेशन है। ये जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, यानी आप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप पुरानी तारीख में उनको नोटिस देते और एक ही दिन में
हजारों लोगों को आपने बेघर कर दिया। अगर प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कल लाल किले से ये जो टारगेटेड वायलेंस किया जा रहा है उसको कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री कल खड़े होकर कहेंगे कि जिस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है उसका मैं कंडेम करता हूं, चाहे वो रेल में वो आतंकवादी का वाकया हो या फिर जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को कंडेम करिए। प्रधानमंत्री वायलेंस को कंडेम करिए ना, चाहे वो नू का वायलेंस हो और फिर उसके बाद जो वीडियोस, उससे पहले जो वीडियोस बनाए गए, कंडेम करिए कि कौन है लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये बुलडोजर कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है? हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई फिर कोर्ट क्यों है? अमित शाह ये 3 कानून क्यों लेके आए? सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट हटाने के लिए आप क्यों ला रहे हो उसमें? आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका? वो कानून को, नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका ये आखिरी भाषण होगा। देखते हैं कल क्या होगा। तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान पे बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर पे पत्थर गिर रहे हैं। सर, आपको धमकियां भी दी जा रही है? मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे? मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए, उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूं, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मर्तबा का सांसद हूं मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट इसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर, उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के MP के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तस्वीर दिनों ऐसी क्या चीज रहा अभी। और तरफे तमाशा ये है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई बीजेपी के बड़े नेता के घर पर, तो क्या होता बताइए, क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है और बीजेपी को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते ना बुलडोजर पे बोलते। 750 घर नू में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए।